Hello, good morning, students. Hope you all are fine. Today we will see your moments, chapter number 9, The Accidental Tourist. Okay, see the name, The Accidental Tourist. Now, see, children, this story, okay, The Accidental Tourist, is an experience of the author, that is Bill Bryson. Okay, The Accidental Tourist is a story of author Bill Bryson. Now, see what happens when he always travel. Okay, different incident happen when he used to travel. So let us see what is there in the story. Okay, children, see, they say that the world today is a small place because travel has become easy, but not everybody finds it easy to travel. Okay, see, children, what they say is that world today is a small place because you can travel easily. Okay, because now we have every facility to travel. We can take lunch at another country and dinner at another country. Okay, we have that much facilities, so we can say that a world today is a small place because we can traveling becomes easy. But see, children, not everybody finds it easy to travel. Here we can see in this story. Okay, see, here the author reflects humorously his experiences as a traveler. See, as I told you, Bill Bryson, how the author humorously reflects his experiences as a traveler. Okay, वो अलग अलग एक्सपीरियंस आपको दिखाएगा उसका as a traveler. Okay, what he faced. Now see, of all the things I am not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding. Okay, see what he is telling, that of all the things I am not very good at, मैं किसी भी चीज़ में good नहीं हूँ. Okay, I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. Okay, मुझे ये देखकर बहुत ही ऐसा मीन्स आई फील दैट हाउ पीपल कैन डू any work. Okay, number of things how they can manage without any evident, okay, without any difficulty, how people can manage to do everything. Okay, so he was, because he was not able to manage anything. So let us see here. Okay, see what he is telling. I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema. Okay, lavatory means toilet in a cinema, for instance, and ended up standing in an alley, means narrow passage, on the wrong side of a self-locking door. See what happened. वो क्या बता रहा है कि उसके साथ कितनी टाइम ये हुआ है पता नहीं, कि वो जब भी सिनेमा में टॉयलेट में यूज़ करता है तो उसके साथ ये इंसिडेंट हो जाता है कि वो एलआई में मीन्स नैरो पैसेज में खड़ा हो जाता है रॉन्ग साइड में, और जो डोर सेल्फ लॉकिंग मीन्स सेल्फ लॉक डोर होता है उसी पे वो अटक जाता है, ना तो अंदर जाता है ना बाहर जाता है, सब लोग आते जाते रहते पर वो लॉक हो जाता है. ओके, सो ये उसने कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स ये फेस किया है. नाउ सी चिल्ड्रन, माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 to 3 times a day एंड आस्किंग व्हाट माई रूम नंबर इज. सी देखो, हद तो देखो, पर्टिकुलरली वो जिस होटल में रहता है वो 2 से 3 बार रिसेप्शन में पूछने जाता है कि मेरा रूम नंबर क्या है. हाँ, see, he did not able to remember that also. Okay, in short, he was so much confused. Okay, वो बहुत confused रहता है. So this thing happens. इसलिए ये सारी चीज़ें होती है. I was thinking about this, and the last time we went in family. See, family is a French word. It means with family on a big trip. Okay, now see, last time he went on a big trip with his family. It was at Easter. Easter means feast after Good Friday. Good Friday, all of you know, हाँ, Good Friday के दिन होता है, तो Saturday Sunday feast
होता है. ओके, मीन्स इट वॉज एट ईस्टर, मीन्स ये गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद था, सैटरडे संडे था. एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक, और they were traveling to England for a week. Now when we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program. Okay, see, अब जैसे ही वो लगान एयरपोर्ट बॉस्टन में पहुँचे, चेक इन किया, तो उसे सडनली याद आया कि मैंने रिसेंटली तो ब्रिटिश एयरवे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम ज्वाइन किया है. ओके, इट मीन्स कुछ कार्ड आता है, जैसे कैसे हम शॉपिंग में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो उसका पर्टिकुलर कार्ड होता है कहीं, हाँ, तो जिससे आप शॉपिंग करो तो इतने पॉइंट्स आपको मिलते हैं. तो वैसे ही ये ब्रिटिश एयरवे कोई कार्ड था, फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम उसने ज्वाइन किया था, जिससे अगर आप ब्रिटिश एयरवे में ट्रैवल करो तो आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, गेन करेंगे आप. ओके, सो सी, आई ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग. उसे ये भी याद है कि कैरी ऑन बैग में मैंने कार्ड रखा था, एंड दैट वॉज हैंगिंग अराउंड माई नेक, और वो मेरे नेक के अराउंड ही है. एंड हियर इज़ वेयर द ट्रबल स्टार्टेड. और फिर जो हुआ, ट्रबल शुरू हुई वहाँ से. लेट अस सी. See first what happened. The zip on the bag was jammed. Okay, बैग की जिप जैम हो गई. ओके, मीन्स खुल नहीं रही थी, जैम हो गई थी. सो आई पुल्ड ऑन इट एंड yanked एट इट. ओके, मीन्स ही यूज टू पुल्ड इट ऑन जर्क. जैसे कैसे कोई चेन खुलती नहीं है तो हम ज़ोर से खोलने की ट्राई करते हैं ना. विथ ग्रंट्स एंड फ्रोन्स एंड इंक्रीजिंग कॉन्सर्नेशन. ओके, मीन्स ज़्यादा उसने अपना जोर लगाया. ओके, सो आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स बट इट वुडंट बज. वो थोड़ी देर के लिए ट्राई करता रहा पर चेन हिले भी नहीं. सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर विथ मोर ग्रंट्स. ओके, तो वो ज़्यादा ज़ोर से पुल करने लगा. वेल, यू कैन गैस व्हाट हैपेंड. एब्रप्टली द जिप गेव वे. ओके, सडनली जिप पूरी खुल गई, उसने अपना रास्ता कर लिया. ओके, मीन्स पूरी खुल गई, क्योंकि वो इतना ज़ोर, कोई भी चीज़ आप इतनी ज़ोर से करोगे तो टूट ही जाएगी. तो चेन पूरी खुल गई, टूट गई. ओके, सो नाउ सी, द साइड ऑफ द ब्लैक फ्लू ओपन एंड एवरीथिंग विद इन वॉज extravagantly ejected over an area about the size of a tennis court. ओके, बैग में जो भी चीज़ें थी वो हर जगह फैल गई. जैसे कैसे बड़ा टेनिस कोर्ट होता है, तो उतनी जगह पर पूरा उसका जो चीज़ थी बैग में वो सारी फैल गई. नाउ सी वॉट एवर थिंग्स आर देयर इन हिज बैग. उसके बैग में क्या क्या था देखो. न्यूज़पेपर कटिंग्स एंड अदर लूज पेपर्स. ओके, अ 14 ounce tin ऑफ पाइप टोबैको, मैगजीन्स, पासपोर्ट, इंग्लिश मनी, फिल्म मीन्स वो कैमरा का रोल. ओके, वो सारी चीज़ें बिखर गई नीचे. यू कैन सी इन द पिक्चर. नाउ सी, आई वॉच ड्रम स्ट्रक एज 100 carefully sorted documents came raining down in a fluttery cascade. Okay, now see what happened children. Okay, वो एकदम दंग रह गया, वो खुद ऐसे खड़ा रह गया क्योंकि उसकी सारी चीज़ें बिखर गई. और सी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स केम रेनिंग डाउन, जैसे डॉक्यूमेंट्स की बारिश हो रही हो, सारे डॉक्यूमेंट्स फैल गए सब जगह. ओके, कॉइन्स बाउंस टू अ वैरायटी ऑफ नॉइजी ओब्लिवियंस एंड द नाउ लिटलेस्ट टीन ऑफ टोबैको रोल्ड क्रेजीली अक्रॉस द कॉन्कोर्स, डिसगॉजिंग इट्स कंटेंट्स एज इट वेंट. ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंड. उसके सारे डॉक्यूमेंट्स तो उड़ने लगे, फैल गए सब जगह. देन व्हाट हैपन, कॉइन्स, उसके पास बहुत सारे कॉइन्स भी थे. दैट बाउंस टू अ वैरायटी ऑफ नॉइजी, मीन्स कॉइन्स सारे गिरते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, तो वैसे हुआ. ओके, एंड देन नाउ व्हाट सी हैपन, लीडलेस टीन ऑफ टोबैको. टोबैको का टीन का लिड खुल गया था, तो वो टोबैको भी, उसका टीन रोल होते होते हर जगह टोबैको फैलता गया. ओके, पूरे कोर्टयार्ड में एयरपोर्ट के. सो और वो खाली हो गया पूरा टोबैको का डिब्बा. ओके, सो सी दिस थिंग हैपेंड. नाउ सी माई टोबैको, आई क्राइड इन हॉरर. ओके, उसे सी टोबैको की पड़िया,
बाकी सारी चीज़ें गिर गई थी, उसका उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टोबैको वो वहाँ कहाँ से लाएगा, इंग्लैंड में। ओके, सो ही क्राइड इन हॉरर थिंकिंग दैट वॉट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टोबैको इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में वो उतने टोबैको को कितना उसे दाम चुकाना पड़ेगा। सो नाउ दैट अनदर बजट हैड कम एंड गोन एंड देन चेंज द क्राई टू माई फिंगर माई फिंगर। ओके, पहले वो टोबैको टोबैको करने लगा, क्योंकि उसे याद आया कि इतना टोबैको वहाँ मैं कितने पैसे में लूँगा। ओके, फिर सडनली उसका ध्यान उसकी फिंगर पर गया। सो ही स्टार्टेड shouting, means crying, that my finger. As I discovered that I had guessed, means I had cut my finger on the zip and was shedding blood in a lavish manner. Okay, उसे देखा तो उसे पता चला कि मेरे उंगली में से खून बह रहा है, जो कि मेरी उंगली वो जिप में आ गई होगी और उससे खून जा रहा है लार्ज क्वांटिटी में। ओके, सी व्हाट ही इज टेलिंग, I am not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well, I think asterisks are fully justified. See what he is telling. वैसे तो मुझे I am not very good around flowing blood. मैं खून बहाने में नहीं मानता हूँ, ना तो मैं किसी का खून बहाता हूँ ना खुद का। बट अब अगर बात मेरी है, but when it's my own, I think hysterics means panic are these are fully justified कि मैं दुखी हूँ ये। Okay, he was confused and unable to help. My hair went into panic mode. Okay, उसके बाल खड़े हो गए panic mode में। See here in the picture you can see, means ये तो वो नहीं है सिर्फ बाल को देखना, बाकी ये पिक्चर अलग है। It was at this point that my wife looked at me. See, अब हाँ ये उसकी वाइफ है, बाल उसके भी खड़े ही है बिल ब्राइसन की तरह। हाँ, see, it was at this point that my wife looked at me with an expression of wonder, not anger or exasperation, but just simple wonder. Okay, अब इस पॉइंट पर उसकी वाइफ ने उसके सामने देखा, ना ही एंगर से ना ही कुछ इरिटेशन से। ओके, बट वॉट शी जस्ट सेड, सी, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग। ओके, वो वुमन ने क्या बोला, मीन्स उसकी वाइफ ने, दैट आई कांट, कि तुम जिंदा रहने के लिए ये सब कुछ भी करते हो। ओके, क्योंकि एक तो वो टोबैको भी गिर गया। ओके, सो नाउ हिज वाइफ वॉज spoke. Now his wife spoke. Now see next incident, children. But I am afraid it's so. I always have catastrophes when I travel. Okay, पर उसे बहुत डर लगता था, क्योंकि जब भी वो ट्रैवल करता है कुछ ना कुछ डिजास्टर होते हैं। Once on an aeroplane, देखो अब एक बार क्या हुआ, I leaned over to tie a shoelace. Just at the moment, someone in the seat ahead of me threw his seat back into pull रेकलाइन। ओके, नाउ सी व्हाट हैपन, एक बार जब वो प्लेन में अपनी शू लेसेस टाई करने, अपने शू के लेसेस टाई करने नीचे मीन्स झुका, तो पीछे से मीन्स आगे से किसी ने अपनी सीट पीछे ली एंड फाउंड माई सेल्फ पिन हेल्पलेसली इन द क्रैश पोजिशन। ओके, और उसको ऐसे लगा भी और वो फंस गया। इट वॉज ओनली बाय टियरिंग द लैग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी that I managed to get myself freed. Okay, मीन्स ये तो उसके बाजू में जो मैन था उसकी वजह से वो मैनेज करके फ्रीड हो, मीन्स उससे खुद फ्रीडम ले सका, मीन्स खुद फ्री हुआ जो वो फंस गया था वो। ओके, वरना वो फंसे का फंसा ही रहता। Now see another incident. On another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. अब देखो क्या हुआ, एक ओकेशन में उसने क्या किया, सॉफ्ट ड्रिंक आया तो सॉफ्ट ड्रिंक लेने में उसने उसके बाजू में जो एक लेडी बैठी थी उसके ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दिया। Now the flight attendant came and cleaned her up. Okay, फ्लाइट की जो अटेंडेंट होती है वो आई और उसने क्लीन तो कर दिया। एंड ब्रॉट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक, और मेरे लिए रिप्लेसमेंट ड्रिंक भी आ गई। एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमन अगेन, और इंस्टेंटली वो लाई दूसरी बार भी उस पर गिर गया। सो टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। ओके, उस दिन क्या हुआ पता नहीं कैसे मैंने ये किया। ओके, दोनों बार उसका ड्रिंक वो लेडी पर गिर गया।
Now see, I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movie with a name like the Undead Limb, violently swept the drink from its perch and onto her lap. Okay, दूसरी बार भी गिर गया, दूसरी बार भी उसे याद आया कि अब मुझे ये नहीं करना, मुझे पीना ही नहीं चाहिए। अब वो देखता रहा कैसे वो लड़की आई अटेंडेंट और कैसे उसने क्लीन किया। ओके, उससे उसे ये बहुत ही चीप लगा। ओके, सो नाउ द लेडी लुक्ड एट मी विद द stupefied expression you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched. ओके, हाँ, किसी को आप बार बार ऐसे गीला करोगे, हाँ, तो उसके एक्सप्रेशन तो डेंजर होंगे ही, जैसे इस पिक्चर में है। हाँ, सो इट इज़ ओबियस, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। एंड अटर एन ओथ दैट स्टार्टेड विथ ओ एंड फिनिश विथ सेक। ओके, उसने जो शुरू किया बोलना, ओ से शुरू हुआ एंड सेक से ख़त्म हुआ, एंड इन बिटवीन हैड सम वर्ड्स दैट आई हैड नेवर हर्ड अटर्ड इन पब्लिक बिफोर। ओके, और ये ओ और सेक के बीच में ऐसे वर्ड्स उसने बोले जो आई नेवर हर्ड इन पब्लिक बिफोर, जो मैंने कभी नहीं सुने पब्लिक में। ओके, सर्टेनली नॉट बाय अ नन। ओके, क्रिश्चियन लेडी, नन मीन्स क्रिश्चियन लेडी हु हैज़ रिनाउंस्ड। ओके, क्रिश्चियन लेडी की बात हो, जो उसके बाजू में थी वो क्रिश्चियन लेडी थी। तो उसने मीन्स बहुत बोला, मीन्स ओ से शुरू करके सेक तक, और बीच के वर्ड्स ऐसे थे जो उसने ना कभी सुने हैं पब्लिक में। ओके, वो नन ने सुनाए उससे। Now see children, this however was not my worst experience on a plane flight. ये ही एक worst experience नहीं था। See now दूसरा इंसिडेंट देखो। My worst experience was when I was writing important thoughts in a notebook. Okay, sucking thoughtfully on the end of my pen as you do. Okay, कैसे पेन में पेन हाथ में लेकर देखो, पेन को चबाकर हम कुछ सोचते हैं ना, फिर लिखते हैं। हाँ, जो भी ऐसा करता है उसे पता चल जाएगा। सी इन द पिक्चर। ओके, कैसे पेन को मुंह में लेकर सोच रहा है फिर लिख रहा है। ओके, सो व्हाट हैपन, सी एंड फेल इनटू कन्वर्सेशन विथ एन अट्रैक्टिव यंग लेडी इन द नेक्स्ट सीट। ओके, पेन मुंह में डालकर फिर निकालकर फिर वो बाजू में एक यंग अट्रैक्टिव लेडी थी, उससे बातचीत शुरू की उसने। Now I amused her for perhaps 20 minutes with a scattering of urban bones motes, then retired to the lavatory where I discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth and gums were now a striking scrub-resistant navy blue and would remain so for several days. Now see, 20 मिनट तक पहले वो उससे बातें करता रहा। हाँ, देन रिटायर्ड, फिर वो खड़ा होकर गया लेवेटरी मीन्स टॉयलेट के पास गया। तब उसने देखा कि वो पेन है वो लीक हुई है और उसका माउथ, चीन, टंग, टीथ एंड गम्स वर नाउ ऑफ नेवी ब्लू कलर एंड इट विल रिमेन फॉर सेवरल डेज, क्योंकि ये इंक का कलर जल्दी जाता नहीं है ना, सेवरल डेज तक रहता है। सो ही फाउंड दैट। तो ये भी एक हुआ था इंसिडेंट। सो यू विल अंडरस्टैंड, आई ट्रस्ट व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक्ट टू बी पोलाइट। ओके, मीन्स वो पोलाइट होना उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट था। सी चिल्ड्रन, क्योंकि वो ढंग से ट्रैवल कर ही नहीं पाता था, कुछ ना कुछ इंसिडेंट उसके साथ होता था। ओके, now see, I would love just once in my life to rise from a dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized seismic event. Okay, get in a car and close the door without leaving 14 inches of coat outside, wear light colored trousers without discovering at the end of the day that I have at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil, but it is not to be. See, अब उसकी लाइफ में ये तो सब होता ही रहता था। हाँ, डिनर टेबल पर जब वो मीन्स ऐसा एक भी दिन बहुत कम होता था कि वो
डिनर टेबल से खड़ा होने जाए और अर्थक्वेक ना आए, मीन्स सब कुछ हिला कर रख देता था। ओके, फिर जब भी कार में बैठता था 14 इंच उसका कोट बाहर ही रहता था और डोर बंद हो जाता था। ओके, तो ये भी वो करता था। फिर जब भी वो लाइट कलर के ट्राउजर पहनता था तब पूरा दिन ख़त्म हो तब तक 2-3 बार तो ऐसा होता ही है कि वो च्युइंगम पर बैठ गया हो या आइसक्रीम पर बैठ गया हो या कफ सिरप पर बैठ गया हो या कोई मोटर ऑयल से उसके कपड़े बिगड़े हो। हाँ, ये सब होता ही था उसके साथ। नाउ ऑन प्लेन्स व्हेन द फूड इज़ डिलीवर्ड, हाँ, अब प्लेन में जब फूड डिलीवर होते हैं, माई वाइफ सेज टेक द लिड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी और पुट योर हुड्स अप चिल्ड्रन, डैडी इज अबाउट टू कट हिज मीट। ऑफ कोर्स दिस इज ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विथ माई फैमिली. When I am on my own, I don't eat, drink, or lean over to tie my shoelaces and never put a pen anywhere near my mouth. Now, see, children, what is happening? When he was traveling, means when he used to travel with his family, at that time, what his wife says, see, उसकी wife बोल देती है कि take the lids off, अपने lid बंद रखो, the food for the daddy, daddy के food डैडी फूड अपना खोल रहे हैं, सो पुट योर हुड्स अप, डैडी इज़ अबाउट टू कट हिज मीट. अब सब दूर हो जाओ क्योंकि डैडी अपना मीट काटने वाले हैं. तो हर जगह फैलेगा, उससे अच्छा है बच्चों को पहले से ऐसे कर देती है कि यू बी मीन्स यू सी टू दैट. ओके, ऑफकोर्स दिस इज, और ये सब तभी ये सब वो खा पी पाता है जब वो अपने फैमिली के साथ होता है. ओके, बिकॉज when he was all alone, he don't eat, don't drink, now he don't lean over to tie his shoelaces and he never put pen anywhere near his mouth. Okay, ये सब वो सीख गया, इसलिए अब ये चीज़ वो कभी नहीं करता. अब उसने ट्रैवलिंग में अगर वो अकेला हो तो खाना पीना बंद कर दिया है. ओके, बिकॉज ये सब होता है इसके लिए. So I just sit very very quietly, sometimes on my hands to keep them from flying out unexpectedly and causing liquid mischief. It's not much fun, but it does at least cut down on the laundry bills. Okay, now see the way he's sitting. Now he is always used to sit very quietly. ओके, समटाइम्स ऑन माई हैंड्स टू कीप देम फ्रॉम फ्लाइंग आउट, क्योंकि उसके हाथ भी वो चेयर पकड़ के रखता है क्योंकि उसके हाथ भी इधर उधर ना हो जाए ताकि कोई मिसचीफ हो. ओके, सी फन के लिए नहीं, बट इट एटलीस्ट कट डाउन द लॉन्ड्री बिल्स, क्योंकि कपड़े नहीं बिगड़ते तो लॉन्ड्री का बिल भी बच जाता है. ओके, ये सिटिंग पोस्चर में. सो नाउ ही यूज्ड टू डू दिस. Then see, I never did get my frequent flyer miles by the way. Okay, जो frequent flyer का कार्ड उसने लिया था ना, उसमें जो miles काउंट होते हैं वो उसके कभी नहीं हुए क्योंकि he never do. I couldn't find the card in time, क्योंकि जब भी वो जाता है मीन्स प्लेन की जर्नी करता है तो उसको वो कार्ड मिलता ही नहीं है. दिस हैज़ बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी. उसके लिए ये चीज़ फ्रस्ट्रेट करने जैसी थी. एवरीवन, आई नो एवरीवन इज़ फॉर एवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स. अगर एयर माइल्स आपके पास वो कार्ड है तो बाली जाने के लिए फर्स्ट क्लास में आपको ईजिली यू कैन सिट. आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनी थिंग. और देखो मेरे पास एक भी माइल्स अभी कलेक्ट नहीं हुए. आई मस्ट फ्लाई 1 लाख माइल्स अ ईयर. मैं 1 लाख माइल्स ईयर फ्लाई करता हूँ, फिर भी मेरे में माइल्स एयर माइल्स अभी तक नहीं आवे. येट आई हैव अक्यूमुलेटेड मीन्स कलेक्टेड ओनली अबाउट 212 एयर माइल्स, दैट इज़ डिवाइडेड बिटवीन 23 एयरलाइंस. ओके, सिर्फ 212 एयर माइल्स मिले हैं उसे, और वो भी 23 एयरलाइंस के मिलाकर. ओके, तो वो नहीं जा पाया. ओके, दिस इज़ बिकॉज आइदर आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन. ये क्यों? क्योंकि या तो ऐसा होता है कि वो पूछना भूल जाता है एयर माइल्स का जब चेक इन करता है, और व्हेन आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइन देन manages not to record them, or the check-in clerk inform me that I am not entitled to them. Okay, तो या तो मैं भूल जाता हूँ और जब मुझे याद रहता है तो एयरलाइन के
क्लर्क, चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं, आपका ये नहीं हो सकता है. ओके, सो इन जनवरी ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, अ फ्लाइट फॉर विच आई वॉज गोइंग टू गेट अबाउट अ zillion air miles, the clerk shook her head when I presented my card and told me I was not entitled to any. ओके, अब जनवरी में जब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था फ्लाइट में, तो उसे ऑस्ट्रेलिया के लिए वो जिलियन एयर माइल्स मिल सकते थे. बट जैसे ही अब उसने अपना कार्ड दिखाया, क्लर्क ने हेड शुक करके बोला, नो, यू वर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी, आपको कोई नहीं मिलेंगे. ओके, वाई? तो उसने पूछा वाई. द टिकट इज इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन. नाउ सी व्हाट दैट क्लर्क टोल्ड. क्लर्क ने क्या बोला कि आपकी जो टिकट है वो बी ब्राइसन के नाम से है और आपका जो ये कार्ड है वो डब्ल्यू ब्राइसन के नाम से है. ओके, नाउ सी ही एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वेनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम, बट शी वुडंट हैव इट. ओके, उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि ये भाई दोनों में एक ही है, बिल और विलियम, बट वो समझी ही नहीं. ओके, सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स, तो उसे एयर माइल्स नहीं मिला. एंड आई वोंट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट ये, और इसीलिए देखो अब मैं बाली फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकता. Perhaps just as well, really, I could never go that long without eating. मीन्स वैसे तो अच्छा है बाली नहीं गया वो ही, क्योंकि वो खाना पीना उसने बंद कर दिया था ना प्लेन में, तो वो बोल रहा है कि आई कुड नेवर गो दैट लॉन्ग, इतना लंबा मैं बिना खाए नहीं जा सकता. हाँ, सो अच्छा हुआ जो भी हुआ. ओके, सो हियर योर चैप्टर एंड्स. Okay children, so what you have to do is you have to write your question answer of this chapter in your fair book. Okay children, thank you. Stay home, stay safe.